Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. I have already uploaded all the videos of the literature chapters of Second Term Syllabus. Hopefully you have seen it. If not, please do watch the videos. It would help you to prepare for your examinations. Now, today we are starting with writing skills. I have taken the very first topic that is analytical paragraph. Analytical paragraph was introduced last year. But earlier also we were doing data interpretation. It is very close and similar to it. So let us understand what is analytical paragraph. It is you have to analyze the given data and write a paragraph on it. An analytical paragraph is a form of descriptive writing. It is a form of description only. A data would be given to you, you have to describe it, which is written on the basis of given chart. You might be given with a chart. You might be given with a graph, you might be given with the data, you might be given with some outlines, you might be given with some clues or table and etc. The list is endless. So the thing is, in simple words, we can say एक data आपको given है, उसको आपको अच्छे से study करना है, and then you have to write a paragraph on it. I would say let's spend more time in reading the data, then it would be easy for you to frame a paragraph on it. Let's go on. Let's do one question. So before that, I would tell you that what you have to do while writing analytical paragraph, you have to follow 3 steps. First step is you have to write down that what is the data about. पहले आपको analyze करना है, अच्छे से उसको study करना है. फिर आपको opening line में आपको ये लिखना है that what is the paragraph about. For example, paragraph जो है वो आपको बता रहा है कि कितने व्हीकल्स, कौन से व्हीकल्स कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और कौन सा व्हीकल कम करता है, कौन सा व्हीकल ज्यादा करता है. तो आपको ये बताना है that this data or the given data shows us this. You have to tell ये बता रहा है ये डाटा, ये आपका ओपनिंग लाइन है, ये आपका स्टार्टिंग लाइन है. Then your body talks about the detailed description, the summary, interpretation और explanation. The thing is, second जो आपके टॉपिक के बाद जो आपको सेकंड काम करना है, आपको जो डाटा गिवन है, जैसे अगर 2-3 व्हीकल्स के बारे में गिवन है तो आपको सबको अलग अलग बताना है. फिर उसके बारे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं. आपको एक यूनिक कंटेंट को ढूंढना है, यूनिक पार्ट को ढूंढना है, उसको भी मेंशन करना है. आई वुड टेल यू हाउ यू हैव टू डू दैट. And then the third step would be to write the conclusion. So whatever you deduce from it, whatever the suggestion you want to give, you can give. ठीक है. So it can be a warning also, it can be a caution also. तो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया. पहला हो गया कि what is it about, सेकंड हो गया आपने डाटा को रीड किया, उसको एक्सप्लेन किया, थर्ड हो गया कि आप एक कंक्लूजन दे रहे हैं या सजेशंस दे रहे हैं. ठीक है. तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. द फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन. डोंट गेट कंफ्यूज. आपको 3 पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं, आपको एक ही पैराग्राफ बनाना है, लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर 3 तरह के पार्ट्स होंगे. ठीक है. आगे चलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप फर्स्ट पर्सन को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए. आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं, तो आप आई को बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं और वी को भी नहीं यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन को आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए. ना ही आप आई यूज कीजिए, ना ही आप वी यूज कीजिए. ठीक है. चलिए, अब एक सबसे पहले मैंने एक बार ग्राफ लिया है, तो इस बार ग्राफ को हम पहले स्टडी करेंगे. देन वी विल सी दैट हाउ वी हैव टू राइट इट, and then I would leave you with a sample question, with a practice question that you would be doing by yourself. चलिए, अब हम इसको स्टडी करते हैं. Given below is a bar graph showing some changes in the public behavior in X city. एक X सिटी है, हमें सिटी का नाम X दे रखा है, तो वहां पे लोगों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं, उसके बारे में डाटा दिया हुआ है इन अ पीरियड ऑफ 2 years, और 2 years के बारे में बताया हुआ है. एक पहले, एक लास्ट ईयर, एक प्रेजेंट ईयर के बारे में. एनालाइज करना है आपको केयरफुली, और फिर आपको समराइज करना है वट एवर इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस डाटा. अब सबसे पहले हम इसको पढ़ने में टाइम लगाएंगे. हमें देखो एक्स एक्सिस पे दे रखा है कि क्या क्या बिहेवियर है या थे. स्पिटिंग इन पब्लिक, स्मोकिंग इन पब्लिक, डिफेसिंग वॉल्स विद ग्राफिटी एंड पोस्टर्स, थ्रोइंग डंपिंग गार्बेज एट पब्लिक प्लेसेस एंड स्ट्रीट्स, और ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर. तो ये जो है, ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए कि एक्स एक्सिस पे आपको क्या क्या गिवन है. वाई एक्सिस पे आपको गिवन है नंबर ऑफ केसेस एंड इंसिडेंट्स, तो ये नंबर गिवन है. आपको ये नजर आ रहा होगा. आई फील पिंक स्टैंड्स फॉर द लास्ट ईयर एंड ब्लैक स्टैंड्स फॉर दिस ईयर डाटा. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. अब आप स्टडी कर लीजिए. स्पिटिंग में रिड्यूस आपको नजर आ रहा है, अभी देख लीजिए. स्मोकिंग इन पब्लिक में भी आपको केसेस रिड्यूस नजर आ रहे हैं. ठीक है, और इसमें थोड़ा कम रिड्यूस है, लेकिन रिड्यूस है. तो आप इन तीनों की बात मेंशन कर सकते हैं. स्पिटिंग इन पब्लिक, स्मोकिंग एंड ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर में आपको जो है दे हैव बीन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ
केसेस। अगर हम दूसरी बात करें, जो और हमारे जो दो हैं, एक में तो आपको नजर आ रहा है कि इंक्रीज हुआ है, डिफेसिंग वॉल्स वाले में आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, और इसमें तो कुछ आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि 9 से 12 हुआ है, तो इट इज ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। तो आपको इस तरह से ग्राफ को स्टडी करना है, देन यू हैव टू गो एंड राइट अबाउट इट, ठीक है। अब हमारा ओपनिंग लाइन क्या था कि व्हाट इज दिस डाटा अबाउट, ठीक है। तो अब आप देखिए, The bar graph represents some data on changes in public behavior in X city. आपको बड़ा क्लेवरली करना है इस काम को, क्योंकि आपको ये जो लाइन है ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, ठीक है। और बस आपको बड़ा क्लेवरली वहां से उसको निकालना है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया कि क्या दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, और उसके बाद आपको लास्ट ईयर का दिया हुआ है, इसके बाद आपने लिख दिया ऑन 5 काउंट्स। 5 हमें एरियाज दे रखे हैं, क्या क्या, स्पिटिंग इन पब्लिक, स्मोकिंग, डिफेसिंग वॉल्स, ठीक है, then it is throwing waste and then blaring loudspeakers। तो आपका ये फर्स्ट ओपनिंग लाइन बन गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ यू हैव टू स्टडी फर्स्ट अ कपल ऑफ थिंग्स टू चीयर अबाउट, मतलब एक कुछ अच्छी बातें हैं, क्या है कि there has been nearly 66% fall in the number of incidents of spitting। अब इसने 66% निकाल दिया, इसको आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए। तो आप नंबर ऑफ इंसिडेंट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी है, इसको आप माइनस करके लिख सकते हैं कि इतने नंबर रिड्यूस हुए हैं पिछले साल से अब तक, स्मोकिंग में इतने हुए हैं और ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स में इतने हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, दैट देयर इज अ पॉजिटिव चेंज अमंग पीपल, ठीक है। ओनली 78 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट 229 केसेस लास्ट ईयर, ये आपको स्पिटिंग का ही बता रहा है। स्मोकिंग में भी आपको बता रहा है रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब फॉल ऑफ मोर देन, इसने 80% कैलकुलेट भी किया है, वो भी बता दिया है, ठीक है। लेकिन डिफेसिंग वॉल्स और ग्रेफिटी में क्या बता रहा है कि वो डबल हो गया है। डबल, अब ऐसे आपको अलग अलग लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ये 457 था, उसके बाद ये 983 पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट दे आर डबल इन नंबर। तो आप बोल सकते हैं वो जो है वो डबल हो गया है, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, अब उसने बता दिया लास्ट ईयर 457 केसेस थे और इस साल 983 केसेस हैं। और जो ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर है उसमें कुछ मार्जिनली ही कुछ कम हुआ है, मार्जिनली मतलब बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। नॉट मच हैज चेंज्ड इन द पीपल्स हैबिट ऑफ डंपिंग गार्बेज, इसमें ज्यादा चेंज किसी के बिहेवियर में आया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंप्रूवमेंट तो हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स में, कपल ऑफ इंसिडेंट्स में इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, और सारी चीजें सेम ही है। सो अब आखिर में क्या लिखेंगे, दैट द पीपल हैव टू चेंज देयर बिहेवियर टुवर्ड्स दिस आल्सो, ठीक है। आप एक मैसेज दे रहे हैं। सिमिलरली द यूज ऑफ लाउड स्पीकर जो है वो भी और रिड्यूस होना चाहिए, बिकॉज इट इज द ब्लेयरिंग ऑफ लाउड स्पीकर्स इज नॉट नाइस फॉर द ओल्ड पीपल, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू एंड। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। ओपनिंग लाइन आपको बताना है व्हाट इज इट अबाउट, सेकंड में आपने बता दिया जो भी आपको कंपैरिजन नजर आ रहा है, और थर्ड में आपने बता दिया एक कंक्लूजन और एक सजेशन, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये बार ग्राफ आप खुद करने वाले हैं, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सम कॉमन फूड आइटम्स। तो ये हमें कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि मीट, फिश, ग्राउंडनट, राइस एंड मेज। इसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बताया गया है। Write an analytical paragraph in about 150 words summarizing the data and make appropriate comparisons। अब आप थोड़ा सा इसको स्टडी करने में टाइम लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको लिखने के लिए। मैंने आपको बताया था, पहले आपको बता रहा है व्हाट इज इट अबाउट, तो आप बता देंगे द गिवन पैराग्राफ शोज the nutrient content of some common food items such as meat, fish, groundnut, rice and maize। आपका ओपनिंग लाइन खत्म हो जाता है। फिर आपको बताना है, अब आप इसको स्टडी करिए। अब आप देखिए, ब्लैक वाला है जो प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें है, ग्राउंडनट में है। अब आप फाइबर देखेंगे तो फाइबर इन दोनों में है ही नहीं, फाइबर आपके ग्राउंडनट, राइस और मेज में नजर आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स आपका राइस और मेज में सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। फैट्स जो है वो ग्राउंडनट्स में ज्यादा है, राइस और मेज में थोड़ा कम कंटेंट है, और इसमें भी है और इसमें भी कम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा फिश में है और मीट में है, इन सब में वाटर का कंटेंट थोड़ा कम है। अब आपने इसको डाटा को देख लिया है, अब आप सबसे शुरू कर सकते हैं प्रोटीन से। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैन बी सीन इन ग्राउंडनट, इज फाउंड इन ग्राउंडनट, ठीक है। अब उसका परसेंटेज बता सकते हैं, यहाँ से 70 से लेकर 100 तक है, तो 30% जो है इसके अंदर, ग्राउंडनट के अंदर क्या है, प्रोटीन का कंटेंट है, ठीक है। अब आप इसको वाटर को लेके बता सकते हैं। द फिश हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ वाटर इन इट, कितना परसेंट है, अराउंड 80% इज वाटर देयर, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं।
फिर आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, द कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन राइस एंड मेज इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इस तरह से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर आप ये बोल सकते हैं ऐसा कौन सा आपको नजर आ रहा है जिसमें 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, आप ये भी देख सकते हैं। 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं ग्राउंडनट, राइस और मेज में। तो आप ये बोल सकते हैं ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंडनट, राइस एंड मेज, बट फाइबर इज नॉट देयर इन मीट एंड फिश। So you have to find out, you have to read the data, you have to understand it and then you can write it. ठीक है, तो आप आखिर में बोल सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या दे सकते हैं आप, आपने कंपैरिजन कर दिया, यू कैन कंक्लूड दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, सो द फूड मस्ट बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इट, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एवरी न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट। एक ही, अगर एक का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में तो आपके दूसरे के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आप आखिर में कंक्लूजन ये कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल बन जाता है। आई फील यू हैव अंडरस्टूड इट और आप इसे कर पाएंगे, बट still if you face any problem you can write in the comment box. I will definitely get back to it, and I am going to make more videos on different types of analytical paragraphs, so stay tuned, stay connected.